پاکستان نے ایشیا کپ انڈر 19 کا ٹائٹل جیت لیا۔ انڈر 19 فاتح کرکٹ ٹیم ٹرافی لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا پرتپاک استقبال۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی بھی موجود تھے۔ کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ شائقین کرکٹ کی انڈر 19 ٹیم کے حق میں نعرے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ قومی کرکٹ ٹیم PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد پہنچی۔ ٹیم کے کھلاڑی ڈبل ڈیکر بس پر بیٹھ کر ہوٹل پہنچے۔ انڈر 19 ٹیم کو VIP پروٹوکول میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 191 رنز کے بڑے مارجن سے ذلت آمیز شکست دی۔ شاہینوں نے پہلے کھیلتے ہوئے 348 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا۔ سمیر منہاس کے 172، احمد حسین کے 56 رنز۔ بھارت بیٹنگ میں بھی فیل ہو گیا۔ پاکستانی بولرز چھپٹ پڑے۔ آتے جاؤ جاتے جاؤ کا کھیل شروع ہو گیا۔ بھارت کے 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ پوری ٹیم 156 رنز پر ڈھیر۔ کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ جیت ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ ٹیم مینجمنٹ نے بھرپور سپورٹ کیا۔ بڑا جشن۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے پلیئرز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے پاکستانی ٹیم کو ٹرافی دی۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ پاکستان کو ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتنے پر $15,000 امریکی کی انعامی رقم ملی۔ محسن نقوی بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ جشن میں شامل۔ کھلاڑیوں نے ملی نغمہ دل دل پاکستان بھی گایا۔ اترے چہرے، بہتے آنسو اور بیٹھتے دل۔ ایشیا کپ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارتی کرکٹ ٹیم کی شکست پر بھارتی شائقین افسردہ ہو گئے۔ اپنے کھلاڑیوں پر تنقید کی۔ بری پرفارمنس پر اظہار غم و غصہ۔ چیئرمین PCB کی پاکستان انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کو ایشیا کپ جیتنے پر مبارکباد دی۔ سمیر منہاس کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کی گئی۔ کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کوچ سرفراز احمد اور مینجمنٹ سٹاف کو مبارکباد دی۔ کہا کہ آپ سب نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ محسن نقوی کا ہر کھلاڑی کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ کہا کہ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات PCB برداشت کرے گا۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر محمد شایان فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ محسن نقوی نے اپنی نگرانی میں ایمبولینس کے ذریعے اسپتال روانہ کیا۔ اسپتال پہنچ کر عیادت کی۔ ڈاکٹرز کو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کی ہدایت کی۔ کہا کہ ہمارے کھلاڑی کو نظر لگ گئی ہے۔ ملک کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں۔ حد نکاح کا موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ہے۔ M5 ملتان سے ظاہر پیر اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر سندر، مانگا منڈی، پھول نگر، پتوکی اور کاڑا ساہیوال چیچا وطنی میں دھند ہے۔ قومی شاہراہ پر حد نکاح 0 سے 100 میٹر تک ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ TTP کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے جو ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے، پاکستان TTP اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں۔ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے واضح کر دیا۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منی نے کہا کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور پر روشنی ڈالی۔ اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی۔ تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا۔
मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी, महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरीफ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह से ये है कि रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्तिलाफ की इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बहाली का शिकार हो गई। कॉन्फ्रेंस का इनकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तल ख़वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 ख़वारिज जनवासिल। जिला बन्नू में दूसरे कार्रवाई में 5 ख़वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले ख़वारिज से असला गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों सदूर का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौक़े हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल्स ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर मुमलिकत और उनके वक्त के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी मनसब सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू की। अफ्रीकन का तिजारत अवामी सतह पर रवाबत के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का खित्ते के अमन व तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का भी इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि बानी PTI ने अपना केस खुद ख़राब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं। हमें दीवार से लगा दिया गया मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जद्दोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। PIA की निजकारी के बाद 6,500 मुलाजिमीन की 1 साल की जॉब गारंटी। रोज़वेलेट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में तस्दीक। बोले कि कौमी एयरलाइन के बाद बिजली की
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एक एयरपोर्ट और ज़रूरी तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में तरजीह है। हुकूमत फ्लोर प्राइस का तयन मंगल को करेगी। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज़ की थी वो आज भी बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की है। हमें मीठी मीठी बातों से मत बहकाएं। तमाम मजहबी जमातें चाहती हैं पाकिस्तान में अमन कायम हो। इस्तांबुल में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली ब्रदराना ताल्लुकात है। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत। पाक बहरिया के सरबराह ने PN मिलिंगन शिप्स की तैयारी में नेवल शिपयार्ड के अज़म को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों ममालिक में दिफाई ताउन के फ़रोग़ की भी तारीफ की। तुर्की के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चागी में नौकुंडी के करीब ऑयल टैंकर और पिकअप में तसादम 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। लाशों जख्मियों को नौकुंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। SP चागी के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। खानपुर महर के नवाइया इलाके में 2 ग्रुपों में तसादम फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 पिताफी, असगर पिताफी, हुजूर बख्श पिताफी शामिल थे। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक पिताफी बरादरी के 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी पर तसादम हुआ। ईरान पर एक और हमले का इल्जाम रद्द नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार भी हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान जंग का खैर मकदम नहीं करता, बल्कि इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। हम माजी की जारियत के नुकसानात को भर चुके हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। गजा में मज़ीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। हमास रहनुमाओं का कहना है कि इसराइल लड़ाई चाहता है। सालिस जारियत रुकवाएं। आलमी इदारा सेहत का गजा में गजाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा कि फ़लस्तीन में 1 लाख बच्चों को अगले साल अप्रैल तक शदीद गजाई किल्लत का सामना होगा। जंग बंदी के नफाज के बावजूद गजा में सूरत हाल नाजुक है। उधर लेबनान में इसराइली फौज की बमबारी से 2 शहरी शहीद। इसराइली हमले में गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया।